ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فراڈ کے متاثرین کے لیے اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے الگ پولیس اسٹیشن اور فورس دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے علی رام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رام بتائیے گا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف حکومت جہاں ایک نیا قانون لے کر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک نئی تجویز یہ سامنے آئی ہے اور یہ تجویز بورڈ آف ریونیو پنجاب کی طرف سے دی گئی کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف جو قانونی اور لیگل معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر پولیس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کے لیے الگ سے فورس جو ہے وہ بنا دی جائے اور اس کے لیے الگ سے پولیس اسٹیشن جو ہے وہ قائم کیے جائیں تاکہ اگر کوئی شہری کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف جانا چاہتا ہے، عدالت جانا چاہتا ہے یا کسی پولیس اسٹیشن جانا چاہتا ہے تو ان کے لیے الگ سے ایک سینٹر موجود ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کیا گیا کہ پیرا فورس کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ الگ سے فورس کے لیے پولیس اسٹیشن کے لیے الگ سے ایک یونٹ جو ہے وہ قائم کرنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ وہ ان کے کیسز کو جلد از جلد سنے اور ان کے معاملات جو ہے وہ حل کیے جا سکیں۔ اب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف حکومت دو قانون جو ہے وہ لے کر آ رہی ہے، ایک تو ریرا قانون ہے اور اس کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رجسٹریشن کے حوالے سے ریئل جو اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے ان کے حوالے سے بھی ایک قانون جو ہے وہ موجود ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک پیرالل فورس جو ہے وہ قائم کی جائے گی اور اس کے لیے بجٹ ریکوائرڈ ہوگا اور اس کے لیگل معاملات جو ہیں وہ بھی دیکھے جائیں گے۔ تو اس پر حتمی منظوری اور اس پر حتمی ڈسکشن کے لیے اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ احکامات دیں گی، اس کے بعد بورڈ آف ریونیو اس پر عمل کرے گا۔ بہت شکریہ علی رام۔ الیکشن کمیشن نے 22 جنوری کو سیکرٹری بلدیات کو طلب کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی الیکشن بارے سیکرٹری بلدیات کو طلب کیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی بالکل، محکمہ بلدیات کے ذرائع نے بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 جنوری کو سیکرٹری بلدیات کو اسلام آباد طلب کیا ہے تاکہ پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کی مشاورت ہو سکے اور جلد بلدیاتی الیکشن میں جو تاخیری علبے ہیں وہ دور کیے جا سکے اور رکاوٹیں دور کی جا سکے اور بلدیاتی الیکشن جو ہے پنجاب میں کرائے جا سکے۔ اس حوالے سے سیکرٹری بلدیات کو طلب کیا گیا ہے۔ جی کیسر کھوکھر، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ آئی جی پنجاب نے تھرڈ کوارٹر کا 44 ارب کا بجٹ لاہور سمیت تقسیم کر دیا۔ بجٹ کا 85% تنخواہوں اور پینشن کی مد میں آپریشنل معاملات کے لیے صرف 15% کا بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی ساہی بتائیے گا۔ بالکل، آئی جی پنجاب کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں حکومت کی جانب سے جو تھرڈ کوارٹر جاری کیا گیا تھا وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پنجاب پولیس کو تھرڈ کوارٹر میں 44 ارب سے زائد کا بجٹ دیا گیا تھا جس میں 85% جو ہے وہ تنخواہوں اور پینشن کی مد میں استعمال ہوگا، جبکہ آپریشنل معاملات کے لیے پروکیورمنٹ کے لیے صرف 15% بجٹ استعمال ہوگا، جس کی وجہ سے پنجاب پولیس کو پروکیورمنٹ میں بھی مشکلات کا سامنا ہے اور جو آپریشنل معاملات ہیں، سیکیورٹیز کے معاملات ہیں، اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے سب سے زیادہ بجٹ لاہور پولیس کو 6 ارب 90 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ 35 کروڑ کے فنڈز تمام آر پی اوز کو دیے گئے ہیں۔ سی سی ڈی کو 4 ارب کے فنڈز دیے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی کو 1.5 ارب جاری کیا گیا ہے۔ ٹریفک پنجاب ہیڈ کوارٹر کو 6.25 کروڑ، پنجاب کانسٹیبلری کو 2 ارب، جبکہ اسپیشل برانچ کو 1 ارب 30 کروڑ کے فنڈ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صاحب۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طلباء و طالبات کا اپنی ہی انتظامیہ کے خلاف احتجاج میں پہلے 2 سیمیسٹرز میں سپلی والے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ کیا کہنا ہے ان مظاہرین کا جانیں گے ابو بکر شیخ سے۔ جی ابو بکر۔ جی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے طلباء و طالبات کا اپنی ہی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کا کیا موقف ہے، یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں۔ بتائیے گا جی، ابھی احتجاج کرنے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کا کوئی ٹائم، کوئی وقت ضائع ہو رہا ہے، سال ضائع ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جو ہمارے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے، یہ ناانصافی اس طرح سے ہے کہ انہوں نے سمر سیمیسٹر ہمارا نہیں لگایا اور سمر سیمیسٹر کا جو ٹائم تھا وہ گزار دیا اور اس کے اندر انہوں نے ہمیں تھرڈ سیمیسٹر میں کنٹینیو کر دیا اور تھرڈ سیمیسٹر ہم نے جو ہے وہ پورا پڑھا ہے اور اس سے 12 دن پہلے انہوں نے ہمیں ڈیٹین کر دیا اور تھرڈ سیمیسٹر کے پیپر نہیں لیے۔ اس کے ہمارے تمام کے تمام کریڈٹ آورز بھی پورے ہیں، اٹینڈنس بھی پوری ہے، ہمارے مڈس کے بھی جو ایگزام ہے اور انٹرنل اسیسمنٹ سب کچھ لگ چکا ہے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہمارا جو فیل ہوا تھا، جس سبجیکٹ میں ہم ڈیٹین ہوئے تھے، وہ والا جو ہے ایگزام ہم سے لیا جائے
क्या कहेंगे जी, अभी एहतजाज का क्या मकसद है, बताइएगा। हमारा यही मकसद है कि हम लोग को एटलीस्ट पेपर्स तो देने दें आप थर्ड के। अब हमारा 1.5 साल कैसे ज़ाया कर सकते हैं, ये तो कोई तरीका नहीं होता। हम लोगों को 3 महीने से हम लोगों को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं पता हम लोगों ने क्या करना है, बेसहारा छोड़ा हुआ। हम भी तो स्टूडेंट्स हैं, आप एक 2 नंबर से बच्चों को फेल कर देते हो, फिर आप उनसे कहते हो आप लोग डिटेन हो गए हो, और उसके बाद आप लोग बिल्कुल छोड़ देते हो बच्चों को। कम से कम कुछ तो बताएं। हमारी डिमांड ये भी है, लेकिन हम लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों के रीसेट एग्जाम्स दिए गए हैं तो आप लोग फेल हुए हैं, इसमें आप लोगों की गलती है। हम अपनी गलती मानते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ये भी है कि हम लोगों का समर सेमेस्टर लगाया जाएगा, जो कि हमारा नहीं लगा। हम थर्ड सेमेस्टर में थे, हमारी क्लासेस हुई थी, हमारे मिड्स हो रहे थे, हम लोगों ने फिर भी थर्ड सेमेस्टर के पेपर भी दिए हैं और उसके बाद हमने फर्स्ट के रीसेट भी दिए हैं। हमारी पॉलिसीज़ में था कि आप लोगों का अक्टूबर में समर सेमेस्टर लगेगा, लेकिन समर सेमेस्टर नहीं लगा गया। को यही कहा गया कि पहले आप दोबारा से पहले 2 सेमेस्टर की जो सप्ली के पेपर्स हैं ये पहले क्लियर करें। अब इनका ये मौक़िफ़ है कि इनका जो पूरा साल है ये ज़ाया मत होने दें। जी अबूबकर शेख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सेहत के तमाम इंतजामी ढांचे को कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम के मुताबिक ढालने का फैसला कर लिया गया है। महकमा सेहत ने फील्ड स्टाफ की तमाम पोस्टों का नाम तब्दील कर दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी जाहिद चौधरी, बताएगा नई पोस्टों का क्या नाम रखा गया है? जी महकमा सेहत की जानिब से सेहत आमा के तमाम इंतजामी ढांचे को अब यूनियन काउंसिल की सतह पे जो है वो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम के मुताबिक ढालने का फैसला किया गया है और महकमा सेहत ने फील्ड स्टाफ की तमाम पोस्टों का नाम तब्दील करके उसको यकसा नाम दे दिया है। स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, CDC सुपरवाइजर, वैक्सीनेटर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और मिडवाइफ जो हैं उनको अब तमाम को जो है वो सीनियर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का दर्जा दे दिया गया है और उनकी जो नई पोस्ट है जो रीडेजिग्नेट की गई है वो अब सीनियर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की होगी। इस हवाले से तमाम अजला के CEOs हेल्थ को जो है वो हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो यूनियन काउंसिल की सतह पे जो फील्ड पोस्टें हैं उनका जो नया नाम है जो उसको रीडेजिग्नेट फौरी तौर पे करें और इसी नाम के तहत जो है वो ये तमाम स्टाफ जो है वो काम करेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बतौर सीनियर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर तमाम स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाए और इनको जो है वो डिस्ट्रिक्ट के बजट से इनकी यूनिफॉर्म, मोबाइल, टैब और इनको कन्वेंस जो है वो मुहैया करने के इंतजाम किए जाएं। इस हवाले से जो अलग अलग ये नामों से ये असामियाँ जो है वो कायम थी, अब इन सब का जो है वो एक ही यकसा नाम सीनियर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलान आगाह कर रहे थे। सरकारी स्कूल्स में दर्जा चहारम क्लरिकल स्टाफ सालों से अफसरान के साथ तैनात होने का इंकशाफ हुआ है। स्कूलों में सफाई, सिक्योरिटी, हिफाजती और क्लरिकल काम बुरी तरह मुतासर हो गया है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल राजा बोला में 3 मुलाजमीन स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ऑफिस में तैनात। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। हम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल राजा बोला में मौजूद हैं, जहां पर 3 जो दर्जा चहारम के मुलाजमीन हैं वो अफसरान के साथ अटैच हैं और यहां पर स्कूल जो है वो कूड़ादान बन गया है। हालांकि सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं। स्कूल काउंसिल जो है वो सरापा एहतजाज, इसी वाले से हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद है। ये इसमें स्कूल में ना तो कोई चौकीदार है ना कुछ वो सफाई वाला है, ये कूड़ेदान बना हुआ है स्कूल। ना इधर टीचर पूरे, ना इधर चौकीदार है। चीजें चोरी हो रही हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? जी यहाँ पर स्कूल खंडर बना हुआ है। क्लरिकल स्टाफ भी नहीं है, वो अफसरान के साथ अटैच हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? यहाँ चौकीदार ना होने की वजह से वाटर पंप चोरी हुआ है और यहाँ पे कैमरे चोरी हुए हैं और ये जो दरवाजे और खिड़कियां जो है वो तोड़ फोड़ उनमें हुई है। काफी नुकसान जो है ना स्कूल का हुआ है और सफाई ना होने वाले की वजह से, जो सफाई करता है उसके ना होने की वजह से पूरा जो है स्कूल का निज़ाम, यहाँ पे सारे पौधे और जो यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए जो झूले वगैरह बनाए गए थे वो सारे टूट फूट का शिकार हो गए। जी आपने बात सुनी, यही स्कूल काउंसिल मेंबर का मुतालबा है कि फौरी तौर पर। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब बात करें कुछ मौसम की, तो कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर में दाखिल होगा। 20 से 23 जनवरी तक लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बारिश से सर्दी में इजाफा और धुंध की शिद्दत में कमी आएगी। कैसा मौसम है और क्या पेशगोई की जा रही है, बारिश के हवाले से समरा फातिमा से जानेंगे। जी समरा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। कल से शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल से लाहौर में दाखिल होगा, जिससे 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक शहर लाहौर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बारिशों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आएगा, धुंध कम होगी, जबकि दर्जा हरारत मज़ीद कम होने के इम्कानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। इस वक्त तो मौसम की अगर बात कर ली जाए तो उफ़क़ पर सूरज का बसेरा है। सूरज की किरणों के बायस आज सर्दी का एहसास कम महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 71% तक है और इस वक्त भी 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि शाम के औकात में सर्दी और धुंध में इजाफा देखने में नज़र आ सकता है। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो आज बागों का शहर आलूदगी के निरगे में है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ चुका है और आलूदगी की शरह 362 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की फ़िज़ा ताहाल आलूदा है और मुख्तलिफ इलाकों में बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। सेशन जज लाहौर की अदालत से कातिल को सजाए मौत उमैर उर्फ शानी को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और 4 लाख मुआवजे का हुक्म सुनाया गया। सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा ने मुलजिम को सजा सुनाई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन बताइएगा। जी सेशन जज लाहौर ने गाजियाबाद के मोइज सईद पान शॉप के मालिक को कत्ल करने के जुर्म में मुलजिम उमैर को सजाए मौत और 4 लाख रुपया मुआवजा वसा को अदा करने का हुक्म दिया। अदालत में गाजियाबाद पुलिस ने 2004 में जो है वो यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में चलान पेश किया गया जिस पर अदालत में मुजफ्फर हुसैन जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने 12 गवाह पेश किए और फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट जो पेश की, जिसके ऊपर अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुलजिम को सजाए मौत और 4 लाख रुपया मुआवजा वसा को अदा करने का हुक्म दिया। ये 2024 में मुकदमा दर्ज किया जो आया गया था चलान। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। तजावुज़ात के नाम पर रेडियां हटाने और बेरोजगार करने का ये केस है। हाई कोर्ट ने डीसी लाहौर को 22 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अदालत का रेडी बांध की दरख्वास्त ना निपटाने पर डीसी पर इजहार बरहमी। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी मलिक अशरफ बताइएगा क्या रिमार्क्स थे अदालत के? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में रेलवे स्टेशन के करीब रेडी हटाने और उसकी दरखास्त का फैसला न करने पे अदालत ने जो डीसी लाहौर है सैयद मूसा रजा उनको 22 जनवरी को ज़ाती चीज़ में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने रेडी बांध की दरखास्त ना निपटाने पर भी सख्त इजहार बरहमी किया और करार दिया कि इस मामले में पहले भी अदालत हुक्म दे चुकी है कि दरखास्त गुजार को सुनकर फैसला किया जाए, लेकिन फैसला नहीं किया गया। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने इस केस की समाअत की तो पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान पेश हुए और उन्होंने अदालत से सजा की कि इस दरखास्त का अभी ज़ेर अल्तवा है तो मोहलत दी जाए ताकि इस पर फैसला कर सकें, जिस पर जस्टिस राहिल कामरान शेख ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल उस्मान खान से मुकालमा करते हुए कहा कि ये इसके रोजगार दरखास्त गुजार के रोजगार का मामला है। अदालत ने पहले भी इस दरखास्त को निपटाने का हुक्म दिया था, लेकिन अब जो डीसी हैं उनको ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करे। दरखास्त गुजार का ये कहना था कि उसकी रेडियाँ हटाई गई हैं, जिसपे उसने वहाँ पे रेडियाँ लगाने के लिए और वो जगह के लिए उसने पैसे भी जमा करवाए, लेकिन अभी तक उसकी जो दरखास्त है उस पर डीसी ने फैसला नहीं किया और उसकी और रोजगार जो है उसका रोजगार वो मुतासर हो रहा है। तो अदालत से ये सजा की गई थी कि दरखास्त गुजार की रेडियाँ वापस करने का हुक्म दिया जाए और उसे वहाँ पे रोजगार, ताकि वो वहाँ पे रोजगार अपना रोजगार सिलसिला चला। जी मलिक अशरफ हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सांधा और इकबाल टाउन पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। पुलिस को डकैती और चोरी, असलहा और दीगर मुकदमात में गवाह नहीं मिले। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन बताइएगा। एक ऐसा केस पेश हुआ है जिसमें सांदा और इकबाल टाउन पुलिस की कारकर्दगी जो है वो सामने आई है। ये कारकर्दगी ऐसी है कि इन्होंने एक मुइमर खातून को जो है वो इस्तेमाल करते हुए उसको बतौर गवाह 31 मुकदमात में जो है वो नामजद जो है वो कर दिया। यहाँ इंसाफ के लिए जो है इस वक्त आई हैं, क्या मौक़िफ़ है वो हम इनसे जानते हैं। मैनू कोई पता नहीं थाने का, ना मैनू साने थाने का पता तो ना इकबाल तो ना मैं अज तक यह काम किया ही है। तो मैं अल्लाह का घर वेख्या होया तो मेरे नाल जुल्म किया गया, मैनू इंसाफ चाहिए। मैं बुढ़े बारे मैनू
मेरे शहादत पाइया ने जिन्हें भी ज़ाहिर होना चाहिए। 31 मुकदमात में एक मुइम्मल खातून को गवाह रखा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? 31 मुकदमात में, जिसमें चोरी, डकैती और मुख्तलिफ किस्म की जो नोयत के मुकदमात हैं, इनको बतौर मुलजमा नहीं बतौर गवाह रख लिया है। भाई जब वो कहीं गई नहीं, वो किसी थाने नहीं गई, वो अपने घर रह रही हैं, चलने फिरने से वो माजूर हैं और उनकी बेटी उनको बामुश्किल पकड़ के लाई है। ये तो आज पुलिस आई है तो इन्हें पता चला जी कि जनाब ये मुझे इन केसेस में जो है उन्होंने गवाह बनाया हुआ है, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह इसको देखते हैं क्या बनता है। जी, आपने मियां सईद एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ है, उनका कहना यह है कि खातून को उस वक्त इल्म हुआ जब पुलिस के एहलकार जो हैं ये बताने के लिए। बहुत शुक्रिया शाहीन अती। 746 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस मुलज़िमा शबीन की बुरी जमानत मंजूर हो गई है। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने जमानत मंजूर की है। मून खोखर एडवोकेट ने कहा कि FIA के पास सबूत नहीं, कारोबार रजिस्टर है, जबकि अदालत ने शवाहिद ना होने पर महजबीन की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। 746 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस महजबीन की अबूरी जमानत मंजूर हुई। एडिशनल सेशन जज मंसूर अहमद कुरैशी ने जमानत मंजूर की और मून खोखर एडवोकेट ने कहा FIA के पास सबूत नहीं, कारोबार रजिस्टर्ड है।